मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द सॉल्यूशन। आज हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। जैसा कि मैंने आपको 6 पैटर्न्स के बारे में बताया, अब हम यही जो 6 पैटर्न्स हैं यही हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम ग्रामर भी हमारी क्लियर होती है और हम इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कितना ज़्यादा इसका यूज़ होता है कम्युनिकेशन के अंदर, ये आपको पता चलेगा। अब इसके बाद आप जब बुक रीड करिएगा, जब आप पढ़िएगा, तब आप देखिएगा आपको हर सेंटेंस जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और इसका क्या मतलब होना चाहिए। और जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे और जितनी ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ईजी होता चला जाएगा। बहुत आसानी से आप समझते भी जाएंगे और बहुत आसानी से आप इसका यूज़ करेंगे। देखिए, मैंने बार बार आपको कहा हुआ है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं then you have to speak English, you have to practice and what is more important to speak in English, what is that activity, that is much important, that is more important than other activities. Either it may be writing, listening, reading, speaking. You know, when you have to speak, when you want to speak, when you want to be a good speaker, then you know you must be a good listener. So a good listener can be a good speaker. So do daily practice. It's my suggestion, it's my I'm strongly requesting to you that you must be a good listener. You have to listen the stories, you have to listen the movie dialogues, and you have to listen the lot of other stuffs in English that is available in YouTube and podcast and other social media platform. You know very well, you can find from there. So let's start. We have here I will practice that about these 6 patterns. Number 1, that is I went. You know, I went, मैं गया. I went, मैं गया. And the second one is negative sentence, that is I did not go. So the first one is I went, मैं गया, and in the second negative sentence I did not go. As I said in earlier video, very well you know that when you use did, you cannot use the second form of verb. You have to use only the first form of verb. Every time you have to use first form of verb with did. Okay, remember it. So I did not go. मैं नहीं गया, मैं नहीं गया. So जैसे हम we use मैं नहीं गया, and the third pattern is did you go, क्या तुम गए. And the fourth pattern is did not you go, क्या तुम नहीं गए, didn't you go. Did not and did not and didn't is the short didn't is the same, because did not didn't is the short form of did not. Always remember. So didn't you go, क्या तुम नहीं गए. These two always remember that these two sentences, these two interrogative sentences, here you see that we here we don't use the question words. We don't use here question words. We just use did before subject. We just use did before subject. It will become a interrogative sentence. So always remember, when helping verb comes in starting, then definitely it will be a negative, it will be a question, So, and what type of question? You know, the answer must be in yes or no. Did you go, क्या तुम गए. Yes, I went. क्या तुम नहीं गए, didn't you go. No. या yes, जो भी है, I didn't go, I didn't went, I क्या कहेंगे, I didn't
गो, मैं नहीं गया। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है कि इन दो पैटर्न्स में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और ये क्वेश्चन बन जाते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर 5 and 6th. 5 and 6th, here we use question words. Here you know very well question words. Why did you go? तुम क्यों गए? And तुम क्यों नहीं गए? Why didn't you go? These are the 6 pattern. Please practice about these patterns as much as possible. This is the basic of the English communication. This is the basic of the English communication. So you can say that I'm trying to teach you grammar. No, don't worry, it's a very simple. I'm not going deeply that you have to learn lot of grammar. Don't worry, you don't it doesn't require, please listen to me, it doesn't require to speak to in communication, it doesn't require. So only what is the requirement of to speak English? Only practice. What type of practice? Listening and speaking, listening and speaking. ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनना है, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना आप अच्छा बोलेंगे। इसलिए देखिए, आप प्रैक्टिस कर लिए, आप डेली शेड्यूल बना लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जितना भी आपके पास टाइम हो उतना टाइम आप कंज्यूम करिए सुनने में। आप देखेंगे टाइम तो बीतता जाएगा अल्टीमेटली। एनी हाउ वक्त टाइम डेफिनेटली ये रहने वाला नहीं है, ये बीत जाएगा। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल देखते देखते बीत जाते हैं और हम इंग्लिश को लेकर हम वहीं खड़े रहते हैं। आप अपने तमाम सीनियर्स को देख लीजिएगा जिनकी ज़िंदगी के बहुत बड़ा हिस्सा बीत जाने के बाद भी वो इंग्लिश को लेकर उतने ही परेशान हैं जितने कि आज आप हैं। आप उस ट्रेडिशन को, उस मेथड को बिल्कुल आप बदल दीजिए, वरना रिजल्ट वही आने वाला है जो आपके सीनियर्स का रिजल्ट आया है। गो फॉर प्रैक्टिस, ओनली गो फॉर प्रैक्टिस, डोंट वरी अबाउट ग्रामर। ग्रामर के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, गो फॉर प्रैक्टिस एंड लिसनिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए सुनने की और उसके बाद आप कोशिश करिए प्रैक्टिस की। आप प्रैक्टिस इस फॉर्मेट के साथ आप करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से करेंगे। आगे हम क्वेश्चन आंसर भी आपको अगले उसमें बताएंगे वीडियो में कि किस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पर, क्योंकि मैंने पैटर्न बना दिया, क्वेश्चंस का भी आपको बता दिया और आंसर का भी बता दिया। यू कैन यूज दीज पैटर्न्स फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स और एज वेल। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिस किस तरीके से आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने यहाँ पर बिल्कुल इजी जो वर्ब्स हैं वो लिए हैं और उनकी सेकंड फॉर्म ली है। ओके, सो you have to practice like that. The subject is I, as you consider, जैसे when we are using first pattern, मैं गया, I went, मैं आया, I came. You have to use second form of the verb. Always remember, you have to use in simple past tense and in first pattern the second form of the verb. मैं गया, I went, मैं आया, I came, मैंने खाया, I ate, मैं बोला, I spoke, मैंने बात की, I talked, मैं दौड़ा, I ran, मैं सोया, I slept, मैं चिल्लाया, I shouted, मैं रोया, I cried, मैं हंसा, I laughed। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, आई है, यू है, दे है, वी है, ही है, शी है, नेम है किसी का, इट है। इस तरीके से आप इनका यूज़ करके आप अलग अलग, जैसे वो गया, ही वेंट, वो आया, ही केम, उसने कहा, ही स्पोक, उसने बात की, ही टॉक्ड, उसने बुलाया, ही कॉल्ड। देखिए, मैं बहुत बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ जो सबसे छोटा है। आप इस सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट जुड़ता चला जाएगा। जैसे वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वेरी सिंपल। वो बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। वो घर गया, ही वेंट होम। देखिए, ही वेंट होम, होम एक ऐसा
ऑब्जेक्ट है या नाउन है, आप यहाँ पर कहिए कि जिसके आगे प्रीपोजिशन टू नहीं आता है, टू का यूज़ हम नहीं करते। ही वेंट होम, ही वेंट होम, वो घर गया। ये ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो, ये इंग्लिश में ऐसा ही होता है। बहुत सारे रूल इंग्लिश के ऐसे हैं। एक्चुअल में ग्रामर, पहले ग्रामर नहीं बनी, पहले भाषा बनी, लैंग्वेज बनी, उसके बाद उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए दूसरी भाषा के लोगों ने जब उसको सीखने और समझने की कोशिश की तो उसकी वजह से ग्रामर बनाना पड़ा, ताकि इस भाषा को सीखना दूसरों के लिए आसान हो जाए। क्योंकि हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि माहौल मिले, माहौल हर किसी को नहीं मिल पाता, हर कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो एटलीस्ट हम रीडिंग और राइटिंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम बहुत अच्छी तरह से रीडिंग जब हम करते हैं या फिर हम लिसनिंग सुनते भी हैं तो हमारी लिसनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हम चीज़ों को, ग्रामर को जानने की वजह से हम समझ लेते हैं, हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं। Okay, so we use grammar for that. So yeah, go for practice. Okay, अगर हम कहें तुम गए, you went, उसने कहा, he said, उसने बुलाया, he called, उसने मुझे बुलाया, he called me, उसने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझसे बात की, he talked to me, उसने काम किया, he worked, उसने काम कंप्लीट कर दिया, he completed the work, उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, he completed his homework, he finished his homework, वो सो गया, he slept, वो दौड़ा, he ran, वो चिल्लाया, he shouted, मैं चिल्लाया, I shouted। तो देखिए ये फर्स्ट पैटर्न है। नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ वी विल टॉक अबाउट second pattern. What was that? Second pattern is मैं नहीं गया, नेगेटिव। सेकंड पैटर्न इज नेगेटिव, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से, मैंने बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक, मैंने नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल, उसने नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल, उसने नहीं कहा, ही डिड नॉट से, वो नहीं आया, ही डिड नॉट कम। देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट, चूँकि डिड आ रहा है, देन we have to use first form of main verb. So इस तरीके से हम सेकंड पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आपके लिए बहुत सारे जो है सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ब अवेलेबल हैं, यू हैव टू यूज़। उसने बाद मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से, उसने नहीं कहा, ही डिड नॉट से। हम बहुत जनरली इन सेंटेंसेस को बोलते हैं, वो नहीं आया, वो नहीं आया, ही डिड नॉट कम। तो देखिए इट्स अ वेरी इजी। ओके, लेट्स मूव फर्दर फॉर थर्ड पैटर्न। Okay, third pattern, what was that? What is third pattern is क्या तुम गए, did you go? आपको did का यूज़ आपको सब्जेक्ट से पहले करना है। क्या तुम गए, did you go? क्या वो गया, did he go? क्या उसने कहा, did he say? क्या उसने खाना खाया, did he टेक द फूड, या डिड ही ईट द फूड? क्या वो हंसा, डिड ही लाफ? क्या वो दौड़ा, डिड ही रन? क्या वो बोला, डिड ही स्पीक? क्या वो आया, डिड ही कम? क्या तुम गए, डिड यू गो? क्या वो सोया, डिड ही स्लीप? क्या वो चिल्लाया, डिड ही शाउट और डिड ही क्राई? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन वाले सेंटेंस, इस जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, क्या वो गया, क्या तुमने खाया, क्या तुमने पिया, क्या तुम सोए, इस तरीके से हम थर्ड पैटर्न का यूज़ करते हैं। अब इसी थर्ड पैटर्न के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव भी बोल, जैसे कि अरे तुम गए नहीं क्या, तुम आए नहीं क्या, वो आया नहीं क्या, तुमने कहा नहीं क्या, तुमने सुना नहीं क्या, तुमने बात नहीं क्या की, तुमने खाना नहीं खाया क्या,
और तुम चिल्लाए नहीं क्या, तुम बोले नहीं क्या, तुमने बात नहीं क्या, इस तरीके हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा, वो आया नहीं क्या, वो उसने बताया नहीं क्या, उसने सुना नहीं क्या, उसने बोला नहीं क्या, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखिए बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर नाम लेकर भी बोल सकते हैं, जैसे अमन आया नहीं क्या, अमन गया नहीं क्या, अमन ने सुना नहीं क्या, अमन ने बात नहीं की क्या, पापा नहीं आए क्या, पापा नहीं गए क्या। तो हम इन सेंटेंसेस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? तुम नहीं गए क्या, डिडेंट यू गो, तुम वहाँ नहीं गए क्या, डिडेंट यू गो देयर, तुमने बात नहीं की क्या, क्या तुमने बात नहीं की, डिडेंट यू। देखिए, चाहे हम कहें तुमने बात नहीं की क्या, या फिर हम कहें क्या तुमने बात नहीं की, बात एक ही है। दीज आर सेम सेंटेंसेस। तुमने बात नहीं की क्या, डिडेंट यू टॉक, क्या तुमने कहा, तुमने सुना नहीं क्या, डिडेंट यू लिसन, तुमने, या फिर हम कह सकते हैं डिडेंट यू हियर, तुम वो आया नहीं क्या, डिडेंट ही कम, वो गया नहीं क्या, डिडेंट ही गो, उसने बात नहीं की क्या, डिडेंट ही टॉक्ड, उस वो बोला नहीं क्या, डिडेंट ही स्पीक, तुमने खाया नहीं क्या, डिडेंट यू ईट, हाँ, डिडेंट यू टेक। तो इस तरीके से यहाँ पर हम चौथे पैटर्न में डिड का यूज़, डिड के साथ नॉट का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो हमारा छठा पैटर्न है, पांचवा और छठा, फिफ्थ एंड सिक्स पैटर्न, फिफ्थ एंड सिक्स पैटर्न। सो इन फिफ्थ एंड सिक्स पैटर्न में क्या होता है, फिफ्थ हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। तुम क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं गया, उसने कहा, उसने क्यों नहीं किया, वो कहाँ गया, वो कब गया, वो कैसे गया, उसने क्या किया, उसने क्या बताया, उसने क्या खेला, उसने क्या खाया, उसने कब कहा, उसने कब सुना, उसने कब लिया, उसने कब दिया, हाँ, वो कहाँ गया, वो कैसे गया, है वो, उसने क्यों कहा, उसने क्यों किया, वो क्यों खेला, वो क्यों दौड़ा। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हैं, आप देखिए ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। मैं क्यों गया, वाई डिड आई गो, देखिए वाई डिड आई गो, तुम क्यों गए, वाई डिड यू गो, वो क्यों गया, वाई डिड ही गो, वो उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या सुना, व्हाट डिड यू लिसन, उसने क्या सुना, व्हाट डिड ही लिसन। देखिए ये बड़ा आसान है, इसमें आपको डू और डज का लफड़ा नहीं रहता, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड, और डिड से ही पूरा काम हो जाता है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए ये बड़े मज़ेदार सेंटेंसेस हैं, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप देखिए बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी करने की कोशिश मत करिए। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, गहरा पढ़िए, डीप पढ़िए, बार बार उस चीज़ को, रिपीटेशन इतनी बड़ी पावर है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप अगर 10 मिनट का सिर्फ एक लेक्चर को रिपीट करते हैं, सिर्फ उसी को बार 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 सुनते रहते हैं, तो आपकी इंग्लिश में इतना ज़बरदस्त उछाल आएगा, आप यकीन मानिए कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड if you listen again and again and again, repeat. So I'm suggesting you, I'm strongly suggesting you that you have to listen lot of stuff, lot of materials, lot of videos, lot of audios, and try to listen. I'm not saying that you have to watch. You don't watch movies, listen the movies, try to listen speeches and whatever it may be, but try to listen. Don't try to learn with watching. Don't try to learn with watching. You have to learn with listening. Always remember, you have to learn with listening. It is most powerful tool. I can say it is a very strong and most powerful tool. You will see the magic of these tools. Definitely one day you will see the magic of these tools. When you listen, it will work. Okay, so इस तरीके से हम क्वेश्चन वर्ड्स के हम पांचवें और छठे पैटर्न की बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ एंड सिक्स पैटर्न। तुम क्यों गए, वाई डिड यू गो, वो क्यों गया, वाई डिड ही गो, उसने क्यों कहा, वाई डिड ही से, वो कब गया, व्हेन डिड ही गो,
उसने क्यों कहा, वाई डिड ही से, उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, उसने कब बताया, व्हेन डिड ही टेल। अच्छा, इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे, वो क्यों नहीं गया, वाई डिड नॉट ही गो, वाई डिडंट ही गो, उसने क्यों नहीं कहा, वाई डिडंट ही से, तुमने क्यों नहीं कहा, वाई डिडंट यू से, तुमने क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल, वो कब नहीं गया, व्हेन डिडंट ही गो, उसने क्यों नहीं कहा, वाई डिडंट ही से, वाई डिडंट ही से, उसने क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट ही टेल, वो क्यों नहीं बोला, वाई डिडंट ही स्पीक, उसने क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट ही टेल, उसने वो क्यों नहीं दौड़ा, वाई डिडंट ही रन, सॉरी, वो क्यों नहीं, उसने क्यों नहीं खाया, वाई डिडंट ही ईट, तुमने क्यों नहीं खाया, वाई डिडंट यू ईट, वो क्यों नहीं आया, वाई डिडंट ही कम, तुम क्यों नहीं चिल्लाए, वाई डिडंट यू शाउट, तुम क्यों नहीं रोए, वाई डिडंट यू क्राई, तुमने क्यों नहीं मारा, तुमने क्यों नहीं पीटा, वाई डिडंट यू बीट, तुम क्यों नहीं सोए, वाई डिडंट यू स्लीप। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो, तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।